Hello everyone. Today we are starting Victorian Age. Introduction to Age. Victorian Age refers to time during the reign of Queen Victoria from 1837 to 1901. It was a time of great change in Britain. It means that विक्टोरिया एज जो है वो स्टार्ट हुई थी 1837 से 1901 के बीच। और ये जो टाइम था, इस टाइम पे ब्रिटेन में बहुत सारे चेंजेस हुए, मार्क्ड बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन, सोशल रिफॉर्म एंड ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, द ड्यूटी, मोरालिटी एंड रिस्पेक्टेबिलिटी. Era is marked after Queen Victoria, who symbolized the period values of duty, morality, respectability. It means that Victorian age में बहुत सारे changes हुए थे related to industrialization, social reform and growth, and वहाँ पे ज़्यादा emphasis duty, morality और respectability को दिया गया था. Next is timeline कि विक्टोरियन एज में क्या क्या हुआ था. 1837 में क्वीन विक्टोरिया असेंड द थ्रोन. 1845 to 1849 Irish potato famine causes mass emigration. 1851 Great Exhibition in London showcase industrial progress. In this way, this is the timeline of the events happened in Victorian age. Next we have characteristic of age, which include industrial revolution. Victorian era saw rapid industrial growth which led to the rise of cities and factories. It means that कि विक्टोरियन era में बहुत जल्द इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ हुआ, जिसकी वजह से सिटीज़ में और फैक्ट्रीज़ में एक इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिली. This brought economic progress and social problems such as poor working condition and child labor. विक्टोरियन एज में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ साथ काफ़ी सारे सोशल प्रॉब्लम्स भी आए, जिनमें से पुअर वर्किंग कंडीशन और चाइल्ड लेबर भी थे. नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक इज सोशल रिफॉर्म. द पीरियड saw many efforts to address the inequality brought by industrialization. Law were passed to improve working condition, regulate child labor, provide education for all children. इट मीन्स दैट कि विक्टोरियन एज में अगर सोशल प्रॉब्लम्स आए थे तो टाइम टू टाइम काफ़ी सारे सोशल रिफॉर्म भी लाए गए, इंडस्ट्रियल लॉ लाए गए जिससे कि वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव किया जा सके, चाइल्ड लेबर को रेगुलेट किया जा सके और जो चिल्ड्रन की पुअर वर्किंग कंडीशन है उसको सुधारा जा सके और उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके. थर्ड वन इज़ क्लास डिवीजन सोसाइटी. It means that society in the Victorian age was divided into three sections, which is upper class, middle class, that is bourgeois, and working class. Middle class grew during this period. इस टाइम पे मिडिल क्लास की ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही थी क्योंकि इंडस्ट्रीज़ और कॉमर्स में भी एक्सपेंशन हो रहा था, जिसमें वो वर्कर्स के तौर पे काम करते थे. नेक्स्ट इज़ मोरालिटी एंड वैल्यूज़. विक्टोरियन प्लेस्ड अ हाई लेवल ऑफ morality, duty and family life. There was a strong emphasis on social responsibility and strict code of conduct, especially regarding sexual behavior and relationship. It means that कि विक्टोरियन एज में मोरालिटी और वैल्यू पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया जा रहा था, जो कि हमें उनकी पोइट्री और नॉवेल्स में भी देखने को मिलता है. रिलीजियस डाउट एंड साइंस. Scientific discovery, especially Darwin theory of evolution, challenged traditional religious beliefs. Many Victorians struggled to reconcile their faith with new scientific ideas, leading to debate between religion and science. Religious doubt and science में ये था कि जो डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन आई थी उसने रिलीजियस फेथ और डाउट में बहुत ज़्यादा एक कन्फ्लिक्ट कर दिया साइंस और रिलीजियस फेथ में. Next point is empire and colonialization. British became the world's largest empire during the Victorian period. British Empire expanded across Africa, Asia and America, and imperialism was seen as source of national pride. We all know that कि Britain had colonies in that region of Africa, Asia, America, and यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा colonization जो है वो बहुत ही तेज़ी से हो रहा था. Seventh is women right. While women were expected to be domesticate and submissive, the Victorian era saw rise of women's suffrage movement, which campaigned for women right to vote and for great gender equality. तो women का जो
सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट है वो हमें विक्टोरियन एज में देखने को मिलता है। वीमेन भी इंडस्ट्रीज़ में काम करने लगी और उन्होंने अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाई, जिनमें है कि वीमेन ने राइट टू वोट के लिए कंपेन चलाए एंड फॉर ग्रेट जेंडर इक्वालिटी के लिए आवाज़ उठाई। नेक्स्ट वी हैव लिटरेरी फॉर्म्स ऑफ विक्टोरियन एज, कि विक्टोरियन एज में कौन कौन से लिटरेरी फॉर्म जो है वो स्टार्ट हुए थे। सबसे पहले आता है नोवेल। नोवेल बिकेम द मोस्ट पॉपुलर लिटरेरी फॉर्म ड्यूरिंग द विक्टोरियन पीरियड। अब यहाँ पे राइटर्स दे रखे हैं, दैट इज़ चार्ल्स डिकन, चार्ल्स ब्रॉन्टे, एमिली ब्रॉन्टे, जॉर्ज इलॉयड, थॉमस हार्डी एक्सप्लोर्ड social issues such as poverty, class inequality and right of women. Dickens in particularly is known for his vivid portrait of life in industrial cities. बेसिकली जो वहाँ के राइटर्स होते थे वो अपनी वर्क के थ्रू विक्टोरियन एज में होने वाले सोशल इश्यूज़ पे आवाज़ उठाते थे, जिनमें थे पॉवर्टी, क्लास इनइक्वालिटी, राइट ऑफ वीमेन। ऐसे टॉपिक्स पे ये लोग अपने नॉवल लिखा करते थे जिससे कि लोगों में अवेयरनेस आए। नेक्स्ट वी हैव पोइट्री। Victorian poetry often dealt with themes of nature, love, and death, while also reflecting on the uncertainties brought by scientific advancement. पोइट्री की वहाँ पे जो मेन थीम रहती थी वो होती थी नेचर, लव एंड डेथ पे। वो ज़्यादातर पोइट्रीज उनकी इन्हीं थीम पे लिखी जाती थी। इसके साथ जो भी अनसर्टेनिटी साइंटिफिक एडवांसमेंट के साथ में हुई तो उन्होंने उसके ऊपर भी पोइट्रीज लिखी। मेन पॉइंट्स हैं एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, तो दे आर द लीडिंग पॉइंट ऑफ दिस एरा। नेक्स्ट इज ड्रामा। विक्टोरियन ड्रामा वॉज ऑफन मोरलिस्टिक। विक्टोरियंस का जो ड्रामा होता था वो मोरलिस्टिक होता था, रिफ्लेक्टिंग द स्ट्रिक्ट वैल्यू ऑफ द टाइम। Oscar Wilde stood out with his wit and criticism of Victorian society, particularly in his famous play The Importance of Being Earnest. It means that कि जो ऑस्कर वाइल्ड हैं वो वहाँ के इम्पोर्टेंट एंड मेन ड्रामेटिस्ट थे, जिनका जो वर्क था इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट वो एक इंस्पिरेशन था। नेक्स्ट इज चिल्ड्रन लिटरेचर। विक्टोरियन एरा saw the rise of children literature with authors like लेस कार्ल एंड रुडयार्ड किपलिंग का जो जंगल बुक है ये चिल्ड्रन के लिए लिटरेचर लिखा करते थे, जिसमें कि कुछ फिक्शनल स्टोरीज हैं, कुछ इमेजिनेटिव स्टोरीज वो लिखते थे। नेक्स्ट इज एसे एंड नॉन फिक्शन। मैनी विक्टोरियन राइटर्स रोट essay and non-fiction work addressing social, political and religious issues. Thomas Carlyle, John Stuart Mill and John Ruskin were influential thinkers who shaped public opinion on reform, education and art. It means that काफ़ी सारे जो राइटर्स थे वो ऐसे और नॉन फिक्शन स्टोरीज़ के थ्रू वो अपने जो उनका व्यू था सोशल कॉन्सिक्वेंसेस पे ऑफ द विक्टोरियन एज, जैसे कि पॉवर्टी, क्लास स्ट्रगल, इसके वजह से जो भी विक्टोरियन एज में हो रहा था तो ये उसके ऊपर आवाज़ उठाते थे अपने वर्क के थ्रू। So that's it for today's video. In next video we will study Victorian poetry. Thank you.